Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well with your preparation. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started with the topic first. So today is 31st of October and the first topic is Public Affair Index 2020. This is an important index which has been released by an independent think tank. The second important topic is Finance Commission, that is 15th Finance Commission to submit the report. The third topic is Malabar Naval Exercise 2020. The second last topic is India-US defense relationship. And the last topic is Statue for Unity gets a tourism boost, right? So these are some of the important topics of the day. Apart from this, I'll be discussing some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions. तो जो कल के सवाल है उसके correct option और explanation भी देखेंगे. So stay tuned till end of this video so that you could practice some important questions. And we are organizing a UPSC Prelims Open Quiz Contest on our IS initiative platform, that is IS Gyan. This is powered by Apti Plus. So what you can do, you can participate on the weekly quiz and you can win the exciting prizes. For more details, what you have to do, you have to refer to the description section of this video where you can register yourself and you can win the cash prizes as well as other checking of evaluation of the mains answer copies. So do participate and check the description of this video. Now coming to the first topic, that is Public Affair Index 2020. This is an important index and this topic is relevant for the examination in terms of General Studies Paper 2 and equally important for your General Studies Paper 4 case studies, right? So whenever you talk about the case studies, some references might be used there. So the Public Affair Index 2020, this is recently released by the Public Affairs Center. पैक बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इन्होंने रिलीज किया, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है. आई विल टेल यू डिटेल अबाउट दिस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. नाउ अकॉर्डिंग टू द पैक, द गवर्नेंस परफॉर्मेंस इज एनालाइज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस तरह से गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को एनालाइज की जाती है ताकि उस स्टेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जो कि डिफाइंड हो 3 पिलर से, दैट इज इक्वलिटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी. तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जिसपे ये जो पूरी बेसिकली जो सर्वे है, जो इंडेक्स है, वो डिपेंडेंट. नाउ द PAI एनुअल रिपोर्ट रैंक द स्टेट ऑन द गवर्नेंस. बेसिकली जो हमारा PAI है, जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, वो एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि रैंक को बेसिकली जज करती है उनकी गवर्नेंस पे और कंपोजिट इंडेक्स देती है अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Now talking about the performance of the state, जो इस बार की जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में अगर समझें तो कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, लार्ज स्टेट कैटेगरीज और स्मॉल स्टेट कैटेगरीज की. सो टॉकिंग अबाउट द लार्ज स्टेट कैटेगरीज, सो द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हियर इज केरला. केरला सबसे ऊपर परफॉर्म कर रहा है. दिस इज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री. और 4th साउथ इंडियन स्टेट्स की अगर बात करें, जो टॉप परफॉर्मिंग में सारे साउथ इंडियन के स्टेट्स ही हैं, जिसमें केरला 1.388, तमिलनाडु 0.912, आंध्र प्रदेश 0.53 और कर्नाटका 0.468. आपको ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू नो द क्रोनोलॉजी. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राइट? ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि केरला के बाद फॉलो कर रहे हैं. Now talking about the bottom performing state, लार्ज स्टेट के कैटेगरी में, वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज स्टेट कैटेगरीज. तो जो बॉटम में परफॉर्मेंस है वो है उत्तर प्रदेश की -1, उड़ीसा, बिहार. These are some of the bottom performing states. Now small category states की अगर बात करें, so the top performer here is Goa, ranked with 1.74, followed by Meghalaya and Himachal Pradesh. तो small category के states में these states are performing very well. और इसमें जो सबसे खराब परफॉर्मेंस है वो है मणिपुर की, दिल्ली की और उत्तराखंड की, राइट? So these 3 states are the worst performer according to the report. Now, यूनियन टेरिटरीज में भी कैटेगराइज की गई है. सो चंडीगढ़ हैज इमर्ज्ड वन ऑफ द टॉप कैटेगरी इन द यूनियन टेरिटरीज, फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप. तो ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है. नाउ दादर एंड नगर हवेली, अंडमान, जम्मू एंड कश्मीर एंड निकोबार आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स इन टर्म्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. Now, if you want to read more about the Public Affair Index, it is important because UPSC के एग्जाम में डायरेक्टली आपसे Public Affair Index के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि what is this organization and what is this index all about. So the index is released by a non-profit organization जो कि हेड की जा रही है अभी प्रेजेंट में
जो हमारे इसरो के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगराजन, ही इज अ चीफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन 10 थीम्स, 10 थीम्स के ऊपर ये बेस्ड है, जिसमें 30 सब्जेक्ट की कवरेज होती है और ऑलमोस्ट 100 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिन पे गवर्नमेंट के डेटास को एनालाइज किया जाता है. सो दिस इज द गवर्नमेंट डेटा. Right now it cover a wide range of theme that supports human development, social protection. तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, उसके अलावा एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वुमेन एंड चाइल्ड की किस तरह से डेवलपमेंट है, प्रोटेक्शंस है, क्राइम की क्या सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से, और डिलीवरी ऑफ जस्टिस कैसी है वहां पे, इन चीजों को दिखे जाती है. इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, environment, scale management and economic freedom. So economic freedom is also very important in the country like India. So these are all of the important point with regards to the public affair index. Now coming to the second topic, that is 15th Finance Commission to set up the report. This is with regards to the general studies paper 3. आपकी पेपर 3 में चीज़ इंपॉर्टेंट है, और 15th Finance Commission itself is important for the prelims examination. तो जो 15th फाइनेंस कमीशन उन्होंने फाइलाइज किया है कि एक रिपोर्ट जो कि फंड डिवोल्यूशन को लेकर के स्टेट को वो रिकमेंड करेगी, जो इनकी टाइम ट्रैवल है, जो टाइम पीरियड है, दैट इज 2021 टू 2026, राइट. तो ये जो रिकमेंडेशन है 2026 तक फॉलो की जाएगी. Now the commission is expected to submit the report president on 9th of November. 9th नवंबर को ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को टेबल की जाएगी. उसके बाद अलग से फिर दिस वुड बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, और दिस द फर्दर द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वुड बी डन, and the report would be subsequently tabled by the finance minister in the parliament along with the action taken report. तो एक ATR बोलते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट. सो दिस इज बीइंग सबमिटेड कि सरकार अब उस पर किस तरह से काम करेगी जो रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन ने दिए हुए हैं, राइट. नाउ व्हाई व्हेन 15th कमीशन वाज फॉर्म, जो 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें, दिस इज 15th FC. तो इसकी जो फॉर्मेशन है दैट हैज हैपेंड ऑन नवंबर 2017 against the backdrop of the abolition of the planning commission. Planning commission के पास पहले devolutions की power हुआ करती थी, but after the नीति आयोग the other changes that has happened, so now the finance commission has been given the power. इसमें कुछ distincts between the planned and non-planned expenditures के बारे में बात की गई है, और GST के आने के बाद जो GST में किस तरह से सेस डिस्ट्रीब्यूट होगी between the center and the state, that would be again decided by the finance commission. Now टर्म एक्सटेंड की गई थी फाइनेंस कमीशन की, ऑल्दो इसकी जो ओरिजिनल रिमिट थी दैट वाज टू बी कमेंडेड बाय द फंड शेयरिंग फार्मूला सेंटर और स्टेट के बीच में, बट इसके टर्म्स 11 महीने के लिए बढ़ा दिए गए. और लास्ट ईयर गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड द कमीशन टू सबमिट द इनिशियल रिपोर्ट बाय जस्ट ईयर 2021, राइट. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं जो कमीशन ने दिए हैं, और जो कमीशन देगी उसके कुछ हाइलाइट्स अभी एक्सेसिबल है. तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, बट जब 9th नवंबर को ये रिपोर्ट आएगी, सो वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस एज वेल. सो डिटरमाइनिंग द वाइबिलिटी ऑफ सेपरेट डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी फंड. तो कंट्री में किस तरह से एक सेपरेट डिफेंस के लिए किस तरह के फंड की ज़रूरत है, नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या फंड चाहिए होगी, इसके बारे में अलग से एलोकेशन कमीशन बताएगी. Now the report has also part the states share on the divisible pool, जो कि 14th फाइनेंस कमीशन ने भी कहा था, फिर 42% की जो डिवोल्यूशन है उसके बारे में, और 41% साइटिंग द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. जो यूनियन टेरिटरीज जो नए बने हैं उनको 41% तक की डिवोल्यूशन की भी बात कही गई है. Now the issues relate to the GST compensation, which was again a tussle between the central government and the union government. बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो जो स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में जो टसल चल रही थी बेसिकली विथ रिगार्ड्स टू द GST कंपनसेशन, उसको लेकर के भी इस बार चीज़ें क्लियर होगी. सो द पैनल इज एक्सपेक्टेड टू द फैक्टर ऑफ द अनपेड GST कंपनसेशन. जो ड्यूज हैं स्टेट के साथ वो कैसे कैलकुलेट होंगे, फाइनल रेवेन्यू की कैलकुलेशन क्या होगी बियॉन्ड 2022. And the state would be guaranteeing the compensation by the state revenue losses. जो states को लॉस हुई हैं कोविड के बाद भी या उससे पहले भी जो लॉस होते आ रही हैं, उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर. बिकॉज GST जब बनी थी उस टाइम पे सरकार ने ये क्लियर कहा था कि 5 साल तक जो भी स्टेट को प्रॉब्लम होगी उसकी कंपनसेट GST काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करेगी. नाउ हाउएवर द डिस्ट्रप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू पेंडेमिक and the lockdown has dampened the cess collection and compensating state.
तो कहीं ना कहीं जो टोटल टैक्स की कलेक्शंस थी, जो सेक्स की कलेक्शन थी, जो पूरे सेस थे हमारे कंट्री में, वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, राइट। सो दिस इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सेंटर के पास पैसे नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी देर लगाएगी, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो स्टेट्स के पुराने रेवेन्यूज बचे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो उनको वापस दिया जाए। Now the other topic, that is Malabar naval exercises. So Malabar naval exercise is between this time Australia, Japan and USA. This is scheduled to be held in the next week. Visakhapatnam coast से इसको होना है. And the Malabar has begun the bilateral exercise between India and USA in 1992. So it started way back in 1992, and in 2015 it was additionally joined by जापान, राइट। तो 4 कंट्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन मालाबार एक्सरसाइज में इस वक्त पार्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट वुड बी इंडिया, सेकेंड वुड बी ऑस्ट्रेलिया विच हैज रिसेंटली ज्वाइंड, एंड द थर्ड वुड बी जापान, एंड द लास्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। Now Australia as a member exercise की बात करें, so this is for the first time that Australia would be joining the exercises after 2007. Last Australia ने 2007 तक ही पार्टिसिपेट किया था, और इस बार 4 कंट्रीज होने के बाद एक तरह से क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग होगी जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज में जो मिलिट्री के पूरे एक्सरसाइज है उसको और बूस्ट करेगी, स्ट्रेंथन करेगी। और पिछले 3 साल से मोर देन 3 ईयर ऑस्ट्रेलिया हैज रिक्वेस्टेड टू हैव द जॉइंट एक्सरसाइज, और इंडिया ने फॉर्मली उनके जो रिक्वेस्ट थे उसको एक्सेप्ट किया, एंड दे अलाउड कि जो ऑस्ट्रेलियन नेवीज हैं वो भी इस बार के मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। तो वेरी पॉसिबल क्वेश्चन दे कैन आस्क यू विच कंट्री हैज पार्टिसिपेटेड एंड हाउ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ 4 countries, that is quadrilateral grouping, would help the Malabar exercise. This can be a possible question in your mains examination. Now phases of exercise की अगर बात करें, so the Malabar naval exercise is scheduled to be conducted in 2 phases. 2 phase में करने की बात की गई है। तो फर्स्ट फेज होगी एक्सरसाइज की, that will involve the participation of Indian Navy, United States Navy, जापान की नेवी, और जो हमारी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है, ये सारे एक साथ पार्टिसिपेट करेगी इन द विशाखापट्टनम इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नवंबर 3 to November 6. जो सेकेंड फेज होगी दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 17 to November 20 इन द Arabian Sea. And the exercise would include the participation of advanced trained Hawk long range Mediterranean patrol aircraft, that is P-18, Dornier maritime craft और helicopters. ये सारे जो चीज हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करेगी, राइट। Now coming to the other news, that is shaping the future. This is India-US defense relationship. So this is important for your general studies paper 2, जहाँ पे IR section में चीजें important है। We already had a discussion regarding the 2+2. सो इंडिया और यूएस रिसेंटली इन्होंने तीसरी मीटिंग की है 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग की। 2 तरह की मीटिंग होती है 2+2 में, एक तो मिनिस्ट्रियल होती है और दूसरी सेक्रेटरियल लेवल पे होती है, जहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी जो इंडिया के हैं, डिफेंस सेक्रेटरी और जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन लेवल पे भी मीटिंग होती है। बट इस बार की जो मीटिंग हुई है वो मिनिस्टर लेवल की है, राइट। So this is demonstrating the strengthening of bilateral relationship between India and US. तो इंडो-यूएस जो रिलेशनशिप है वो कितने अच्छे से चल रही है उसकी एक ये एग्जाम्पल भी है। Now the dialogue has come at the consequential movement of the 2 countries that promote a common vision of free and Indo-Pacific region. जो Indo-Pacific region में जो स्पेसिफिक चाइना की डोमिनेंस है उसको कैसे कम किया जाए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। Now this year this has also announced the conclusion of basic exchange and cooperation agreement. So this is BECA. तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। I already discussed this in our previous daily news analysis. Those of you who have not watched it can refer to the previous also. Now मेजर डिफेंस पार्टनरशिप की अगर बात करें तो द एलिवेशन इज इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप, जहाँ पे मेजर डिफेंस पार्टनरशिप की गई थी 2016 में। एक माइलस्टोन थी इंडिया और यूएस के बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को लेकर के। एंड इन दिस ईयर दे वर इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ कॉम्प्लिसिटी ऑफ द एक्सरसाइज, एक्सपैंडेड म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशंस, facilitating close collaboration, shared security, particularly in the maritime domain. नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ने कोशिश ये की है कि इंडिया के साथ मिलकर एक ऐसी विजन बनाया जाए जहाँ पे इंडो पैसिफिक में शेयर्ड कमिटमेंट हो रिगार्डिंग द ऑर्डर्स एंड रिस्पेक्ट टू द सोवरनिटी ऑफ ऑल कंट्रीज, जो कि चाइना नहीं कर रहा है, बिकॉज इन द साउथ चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी, चाइना इज डोमिनेटिंग। एंड द रीसेंट acceleration of Indo-US
defense relationship has reflected the alignment of security issues जो mutual concerns हैं like working together like minded partners हों forbidden changes जो हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए फ्यूचर में इस तरह का सस्टेनेबिलिटी बनाया जाए ताकि किसी और कंट्री को डोमिनेट करने का मौका ना मिल पाए राइट सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट both country India and US has to consider in terms of their bilateral relationship. Now, talking about the India's Act East policy, India has been always proactively looking forward towards the India Act East policy. So the Prime Minister of India has announced that हमारे लिए Act East policy would be on the priority basis, and this is on the greater involvement promoting Sagar. What is Sagar? You must be knowing this. Sagar is security and growth for all in the region. सो इंडिया ने कोशिश की है कि जो रीजनल स्टेबिलिटी है खास करके जो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ में उसको ज़्यादा किया जाए जो पॉलिसीज़ हैं जो डिफेंड है प्रिंसिपल को उनको बरकरार रखा जाए एंड दैट एवरी कंट्री शुड राइज एंड प्रोस्पर एंड अंडर द पॉलिसी द इंडिया हैज़ डिपेंडेंट द बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप विद द साउथ एशियन कंट्रीज वाइल प्रिजर्विंग द एशियन सेंट्रलिटी तो आसियान की जो बात करें जितने भी मेंबर कंट्री है दैट बिकम पाइवोटल फॉर इंडिया और इंडिया ने अपने पॉलिसी में तब्दीली करते हुए चेंज करते हुए एक्ट इस पॉलिसी को हमेशा ही प्रायोरिटाइज किया है और उसको हमेशा ही अपने इंटरनेशनल रिलेशन में प्रायोरिटी में रखा है तो एक्ट इस पॉलिसी पे डायरेक्टली भी एक सवाल पूछे जा सकते हैं यू शुड बी रेडी विद द पॉइंट्स नाउ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट्स की अगर बात करें सो इस साल के एंड में जो एक्विजिशन और क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट्स थी इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई जहाँ पे मिलिट्रीज एक क्रिटिकल एनेबल टाइप की हुई हैं कॉपरेशंस के साथ नाउ एंड द मंथ इंडिया है इन्वाइटेड द रॉयल नेवल आर्मी जो मैंने आपको पहले बताया जहाँ पे 4 कंट्री क्वालिटरल मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड द इंक्रीज स्कोप ऑफ द क्वालिटरल एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट अ स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस जो चारों कंट्री की जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो कन्वर्जेंस है किसी टॉपिक को लेकर के and fostering the resilient network of the like-minded in the complex region, especially in the Indo-Pacific region, right? Now coming to the last topic, that is Statue of Unity gets tourism boost. So this is the Statue of Unity for the tourism. This is equally important for your prelims examinations. So the Prime Minister is on a 2-day visit to Kevadia. This is in the Narmada district. Inaugurating the 17 tourism projects that is on the Statue of Unity complex, right? And the inauguration of the projects is lying on the foundational stone जहाँ पे 4 projects और भी inaugurate किए गए हैं जहाँ इसको केवाडिया tourism circuit भी कहा जाएगा and October 31st is celebrated as सरदार पटेल birthday जिसको एकता दिवस Unity Day भी कहते हैं that is today India is celebrating the Unity Day. नाउ इनोग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने आरोग्य विज्ञान की नाम से भी एक 100 स्पीसीज मेडिकल प्लांटेशन को इनोग्रेट किया जो कि एक लोटस शेप इंडोर प्लांटेशन पवेलियन होगी जहाँ पे अलग अलग तरह के गार्डन्स हो गए एंड ही ऑल्सो इनोग्रेटेड केवड़िया जूलॉजिकल पार्क जंगल सफारी इन द स्टेट ऑफ यूनिटी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर इनैक्टेड विद द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहाँ पे 331 फैमिलीज के साथ आरोग्य कैफे बनाने की बात की गई है जो कि वहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट देगी साथ के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा एंड ही ऑल्सो इनोग्रेटेड द 2-story एकता मॉल जो कि स्प्रेड ओवर 3500 स्क्वायर फीट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम अक्रॉस द कंट्री जो भी ऐसी महिलाएं या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडीक्राफ्ट पे काम करती है उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी राइट Now, aspirational district is again very important. नर्मदा को आइडेंटिफाई किया गया था नीति आयोग की तरफ से एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विद अ स्पेशल फोकस ऑन द इंडिकेटर मॉनिटरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक टर्न सोशल इंडिकेटर्स सच एज हेल्थ एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट न्यूट्रिशन एंड लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रख के तो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा और द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज स्टिल date attracted more than 44 lakh tourism after the launch in 31st of October 2018. Now this is the Statue of Unity. You can see this image. Most of you must be aware of this image. So it is located in the Sadh Betu Island in the Narmada River between the Satpura and Vindhyas mountain. So ये location भी आप ध्यान रखने कई बार UPSC आपसे ऐसे पूछ देगी with regards to Statue of Liberty. Consider the following statement. It is located between Satpura and Vindhyas mountain range. So you will get confused. So you should be thorough with the topic.
Now the Statue of Unity is the tallest in the world with 182 meters, 23 meter taller. And China की जो बुद्धा's टेम्पल है वो इसके बाद है, Statue of Liberty 93 meters. तो ये US में. The Statue of Unity was designed by the Padma Bhushan received, that is Ram V. Sutar. It was built by 3.5 years. इसमें 3000 लोगों की मदद मिली. जितने वर्कर्स ने काम किया, 300 इंजीनियर वर देयर, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट वाज गिवन टू लार्सन एंड टर्बो. सो दिस वर द कंपनी विच वर हैंडल एंड बिल्ड दिस यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, या बेसिकली जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको. नाउ कमिंग टू द आंसर्स, जो कल के क्वेश्चंस थे उसके मैं आंसर आपको बताऊंगा. So the first question here, the correct option is C, that the president can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the chairman, and the president can hold office beyond the term of 5 years and his successor assume the charges. So अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, you can refer to the Indian Polity book which is written by M. Lakshmikant. You will get the ample information with regards to this chapter. Now the second question, correct option here is B, that the Andaman in the North Sea and the Nicobar, they are separated by the water body called the 10-degree channel. And the statement 2 is correct, that Barren Island is the only active volcano in India situated in the Nicobar. So this I have taken from the NCERT Geography class 11th. Now moving to the today's MCQs question of the day. So the first question is coming from General Science. With regards to arsenic, consider the following statement. Arsenic is highly toxic in its organic form, and arsenic is naturally present in the groundwater. तो आपको क्या करना है इसमें, you have to consider the statement, right? So what you have to do, you have to just consider the statement which among the following is correct, that is A, B, C or D, right? So coming to the second question, which is from the economy, with reference to NRI bond, consider the following statement. The bond attracts the capital during the domestic fail and attract the interest of the foreigner, and it helped to increase the demand of rupee and stabilize the dollar. So right, so you have to choose which among the following is correct, whether A is correct, B is correct, C or D, which among the following is the correct option, right? So do write your answer in the comment section down below. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptplus Academy for Civil Service on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.